एंड ऐसा मार्क करके जवाब नहीं चलो गेमिंग का कंप्लीट आंसर हु मेड सेंटेंस आफ्टर I make sentence after I make sentence after you. who made sentence after you He made sentence after me. तुम्हारे पास सेंटेंस किसने बनाया था मेरे पास sentence अब मुझसे पूछे थे who made sentence after you? I think Arthur will make a sentence after me. चलिए कोई तो जवाब तो सही आ हाँ आगे बढ़ना है आपके पास sentence मैं सोचता हूँ कि मेरे पास सेंटेंस अच्छा में बनाया who made sentences after you? I think she made sentences after me. speak up please speak clearly so that I think she made sentences after me. आपके पास सेंटेंस किसने बनाया था? मेरे पास शायद उसमें किसके लिए बोलना है यहाँ कौन है और श्री मम्मा को उसमें तो नहीं बोलोगे क्या बोलोगे स्पीकर मेरे बाद मैं सोचता हूँ कि मेरे बाद उन्होंने सेंटेंस बनाया सोचते क्यों हो ये सब कुछ सोच क्यों रहे बताइए फॉर्म में इज देयर एनी सीक्वेंस और नॉट ओके लेट मी स्टार्ट अगेन हु मेड सेंटेंस फर्स्ट he made sentence first he was distributing verbs he says I am ready to get my sentence. he should not make sentence first he is distributing the verb अच्छा who made sentence after you He made sentence after me. तुम्हारे पास वाक्य किसने बनाया मेरे बाद वाक्य who made sentence after you? Nitu made a sentence after me. आपके बाद sentence वाक्य किसने बनाया था? मेरे बाद नीतू ने सेंटेंस बनाया who made a sentence after you? I made sentence. Who made sentence after you? Swapnil made sentence after me. के बाद किसने सेंटेंस बनाया? Sorry. I के बाद किसने सेंटेंस he made sentence after me. आपके बाद सेंटेंस किसने बनाया? मेरे बाद Swapnil he was so he who was made sentence after made sentence after you. He is made Sorry.
Give 3D. I get my bag from the bag. 3D means, do you understand 3D? Please, can anybody explain what is 3D? In sentence of the child. These sentences belong to idioms or syntactic sentences. Thank you for explaining. Don't take it. Quran. Out of life and into a fire. आसमान से गिरे कभी नहीं मैंने मानस मान नहीं मानो वो तो है 3 are done or 4 are done? सब हो रहा है So why did you give 4? You give 3 were required. Please ask again. He was Sorry. You ask. who was left after Sorry. You ask. You ask. Uh, who make sentence after you? he makes sentences after me again he made sentences Fine. made sentences after me आपके बाद किसने वाक्य बनाया? वाक्य बनाया मेरे बाद हम उसने बात who made sentences after you What should you say? मेरे बाद किसी ने nobody made the sentences after Well, I was the last. I was the last. आपके बाद किसने सेंटेंस बना मेरे बाद किसी ने सेंटेंस What was? How many sentences have I given you in past simple? I have written you give 5 sentences. What is the first sentence? He said Okay. Who has to make this sentence? I will make Sorry. I have to do Go ahead. the sentences. Okay. Are you ready? Okay, finally you. I have to make the sentence. The sentence is related to past simple tense. Like it is an affirmative sentence. First of all, I will take the subject, and the subject is he. Lastly, I will take the second form of the verb, and the second form of the verb is that.
ओके, इसके बीच में आपको कुछ भी किसी भी चैप्टर से रिलेटेड रखना है। ये दोबारा गेम खिलवा रहे हैं हम आपको। आई एम गिविंग यू दिस एक्सरसाइज अगेन deliberately because your performance is not good. So here we go. He said, I'm waiting for you. उसने कहा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ. He said that I'm ready to answer. उसने कहा कि मैं आंसर के लिए तैयार हूँ. He said, I am talk to her. Stop Sorry. me. He said, what is worship? Ready-made sentences are not allowed. अभी एक स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि पहला है, इसके बाद नहीं चाहिए। ओके, इट विल डू। आप थोड़ी देर बाद नया एक मौलिक सेंटेंस बना के तैयार रहें। नेक्स्ट, Raghu said, नो डोंट चेंज। said, he said, she continued. He said, I was in gym. उसने कहा कि वो जिम में था. He said in the school. He said, Just check. I'm done. I gave my sentence. Check. I read my sentence. Check. I rest. Can I read my sentence? He said, I am waiting. उसने कहा मैं इंतजार कर रहा हूँ. Similar sentence. Soft fire makes us sweet morning, सब तो कल मीठा हो क्योंकि लंदन कभी डूबी है कहीं बने गाय कहीं बने साल What should I do? मैं क्या करूँ? Sentence. Yes. He said, I इसके अंदर कोई भी सेंटेंस रखना हो तो किसी चैप्टर को सोच के। yes. He said, I am reading. उसने कहा मैं पढ़ रहा हूँ. He said, you take rest. और उसने कहा तुम आराम करो. Put your hands together. ऑर्डर रिक्वेस्ट सबसे आसान चैप्टर है क्योंकि कोई नहीं रखता है, सब उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। अब आपने धोखे से रखा है, सोच समझ के रखा, जैसे भी रखा अच्छा रखा। चलिए, I am waiting. थैंक यू, गुड। चलिए, Submit my sentence. I can read my sentence. there is no need to say anything, and you are saying wrong. There is no need to say anything. You have to make sentence on it. Check. I am ready. He said, Check. I made my sentence. Check.
can make one more sentence. Please, you can make one more sentence. He said, "You have to sleep." उसने कहा तुम्हें सोना चाहिए, Sorry for तुम्हें the सोना है। very good. बच्चे ने हैव टू का कितना खूबसूरत यूज किया है। ये हमारे रोज की जिंदगी में काम में आने वाला है। हम रोज एक दूसरे से बोल सकते हैं, मम्मा उससे बोल सकती है, पता नहीं मम्मा क्यों नहीं यूज करती। तो बढ़िया सेंटेंस है। प्लीज रिपीट। He said, "You have to sleep." उसने कहा तुम्हें सोना है। It is very useful sentence. तुम में से अभी तक किसी ने हैव टू का यूज नहीं किया था, बच्चे ने हैव टू का यूज किया। Very good. Check. I made my sentences. Sorry. हाँ, अब वो जुबान पे उसको सेंटेंसेस भर गया, ध्यान में देखिए। लेकिन थैंक यू फॉर यू, तुम जाग रहे हो इसके लिए तुम्हें धन्यवाद। I make my sentence. Check. I made my sentence. Check. He said, he made he said, I learned spoken. तुक्का ना मारे, बिना चैप्टर के कुछ भी एक लाइन से आप कितने भी शब्द रख देंगे, दिमाग में पहले फॉर्मूला होना चाहिए, नहीं तो नहीं बनेगा। उसने मन में हैव टू सोचा, उन्होंने प्रेजेंट कंटिन्यूस सोचा था, उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस में उनका बन गया तो किसी तो वो आराम से बैठे। इन्होंने रेडीमेड रखने की कोशिश की थी, तो हमने एक तो स्वीकार कर लिया, उसके बाद रेडीमेड नहीं चाहिए। वो तो नकल तो हम कोई भी उठा के कर सकते हैं, नकल नहीं से, नकल से आपका इम्प्रूवमेंट नहीं है। कुछ मन से बनाना ही पड़ेगा। He said, I agree with me. बिल्कुल गलत है, इसका कोई अर्थ नहीं। हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, बनाओ एक सेंटेंस। चलो, वो कुछ सेंटेंस तो वो एक भी नहीं रख पा रहा है, तो एक सेंटेंस और बनाओ। और इस बार ई की जगह शी रखो, सब्जेक्ट चेंज करो। She said, "Can you come to me tomorrow?" उसने कहा क्या तुम कल मेरे यहाँ आ सकते हो? बल्कि इसका दूसरा हिंदी, कैन यू कम टू मी टुमारो, क्या तुम कल मेरे घर आ सकते हो? She said, whatever you want, you can do. उन्होंने कहा तुम्हें जो भी चाहिए तुम्हें जो भी करना है वो कर सकते हो। व्हाटएवर का तुमने बहुत अच्छा प्रयोग किया, इसको रिपीट कराओ बेटा सबसे। She said, whatever you want, you can do. इसमें दो चैप्टर रखे, प्रेजेंट सिंपल, व्हाटएवर यू वांट, यू कैन डू, दोनों बकायदा उसने चैप्टर में रखे हैं, इसलिए उसके दोनों सेंटेंस सही हैं। उन्होंने कहा
उन्होंने ठीक है रिस्पेक्ट किया। उन्होंने कहा हमारे साथ बोलेगा she said you can do whatever you want। उन्होंने कहा तुम जो चाहो कर सकते हो। प्रेजेंट सिंपल और कैन दो का कॉम्बिनेशन बनाया बच्चे ने, बड़ा खूबसूरत। She said, "You have understood." Have you understood? She said, लेकिन वो सैड नहीं आएगा। तुम अच्छी कोशिश कर रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट रखने की, लेकिन यहाँ पे क्रिया बदलेगी। उसने पूछा बजाय गई, कुछ और रखो, पास कर देता है। "Pass." she said you can run fast। उसने कहा तुम तेज दौड़ सकते हो। कैन चैप्टर। She said, "You shall cook the food." उसने कहा, तुम खाना बनाओ। she said in the अब एक नया सब्जेक्ट रखते हैं, फिर से सब्जेक्ट बदलते हैं, कोई नाम रखिए। Tony said, "You could give your best." टोनी ने कहा, तुम अपना बेस्ट दे सकते थे। गुड चैप्टर। Tony said sorry let her fly। टोनी इन्होंने यूज किया था, सेम कर रहे हैं। Change the subject. all that glitters is not gold। हर चमकने वाली चीज नहीं होती। Don't poke your nose into others' matter। दूसरे के फटे में टांग मत अड़ाओ। Soft wire makes a sweet mud। सब्र का फल मीठा होता है। आदर्श said he is ready। Be present, he is ready। आदर्श ने कहा वह तैयार है। आदर्श said he is ready। आदर्श ने कहा वो तैयार है। Neeraj was not ready. Neeraj said he went to market. नीरज ने कहा वो वह मार्केट गया। ये पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल नहीं। नीरज said he went to the market। Neha said live in Delhi। सॉरी he said Neha said I live in Delhi। उसने कहा मैं दिल्ली में रहती हूँ। आप जो रखते हो वही भूल जाते हो कि रखा क्या है। Neha said live in Delhi। सॉरी और ये टेंस कभी हमने आपको अच्छे से सिखाया नहीं है, इसका खतरा नहीं रहना चाहिए।
ये वैसे भी गलत हो जाएगा। दोस्तों आज आपके ग्रुप में मैडम ने एक हम पहले सूचित करते हैं, आपके ग्रुप में एक वीडियो शेयर किया है 1 घंटे का है, उसको जाके जरूर देखिएगा अच्छे से। कल हम उस पर आधारित सेंटेंस बनाना सीखेंगे। आपको बड़ा चमत्कारिक लगेगा वो वीडियो, यहीं पे शूट किया गया है आपके ग्रुप में। आई होप मैडम Madam have added you, but that video is not posted yet. no, I have just when you were making sentence, so I went up and I instructed madam to post the video. So just 5 minutes back, you must have got. I was Uh, in which chapter you are having no sentence? Can you please present continuous? Future continuous tense. Future continuous tense is not used in tense. This is past continuous. What is it? Have you written this sentence? Yes, sir. Some students work. What's the verb for Pune? those Those. those D-O. I-N. Write down the next sentence in past continuous tense. क्या आप इसे पूरा कर रही थी? Who has to make this sentence? I have made. I have made. I. I have to make this sentence. This sentence is related to present continuous tense. This sentence is related to past continuous tense. This is it is it is this it is an interrogative sentence. Interrogative. Inverted sentence. Yes, you can. Sentence is
पड़ेगा who has to make this. I have to make the sentence. The sentence is related to past continuous tense. It is an It is related to past continuous. inverted sentence. आपने कैसे पहचाना ये inverted? वाक्य की शुरुआत कैसे हुई है? इसमें वाक्य की शुरुआत inverted sentence बनाने का नियम बताना. Subject के बाद वाले शब्द को उठाकर subject के पहले. First of all, I will take the helping verb. The helping verb is verb. अब आप वर्ब कैसे ले रहे हैं? आपके फॉर्मूले में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हैं? Was verb. तो वर्ब कैसे ले रहे हैं? आप तुम हो तो हाँ. plural ले सकता है. ये सहायक क्रिया देखिए बिना फॉर्मूले के सेंटेंस नहीं बनेगा. कोई सेंटेंस नहीं बनेगा कभी. एक आध तुक्का लग गया जैसे उसका लग गया वो बात अलग है. नहीं तो नहीं बनेगा. फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा. देखिए सहायक क्रिया रखिए. Thereafter, I will take the subject, and the subject is you. एक्चुअली यू के साथ वर्ब लगता है. यू के साथ वर्ब लगता है. अभी आप जो कल वीडियो देखेंगे आज घर जाके देखेंगे उसमें आपको इसका जवाब मिलेगा. हम और भी बताएंगे. आप वीडियो देखिएगा उसके बाद बताएंगे. Later on, I will take the first form of the verb plus ing. नहीं ऐसे नहीं. Later on, I will take the first form of the verb. And the first form of the verb is complete. Now I add ing in it. इससे पहले तुमने कोई भी सेंटेंस नहीं बनाया. Before adding, we remove e from complete. जिन वर्ब के अंत में ई होता है उसमें सीधे आएंगे नहीं लगता. आप लगा हुआ देख रहे हैं कुछ अजीब से लग रहा होगा. खराब है. जिसकी नजर पड़ गई है उसको अजीब लग रहा होगा. ऐसी स्पेलिंग तो कभी देखी. तो जिस वर्ब के अंत में ई है वर्ब है कंप्लीट तो उसके सबसे पहले तो ई हटाना है. और इसको कैसे बोलेंगे? I will remove e from complete. आई विल रिमूव ई. मैं ई को हटाऊंगा. And now I will add ing. नाउ आई विल पुट आई इन. या ऐड आई इन. Lastly, I will take the object. The object is it. इसे के लिए हमें एक पूरा करना होगी वर्ब. पूरा करना होगी वर्ब कंप्लीट. रही थे जहाँ था के लिए was या वर्ब प्लस ing. भूतकाल की बात की जा रही है. क्या आप उसे पूरा कर रहे हैं? Are we completing it? Yes, I work. आप दे दीजिए. Yes, I was completing. क्या आप इसे पूरा कर रहे हैं? हाँ, मैं इसे पूरा कर रहा हूँ. Were you completing it? Yes, I was completing it. क्या आप इसे पूरा कर रहे हैं? हाँ मैं पूरा कर रहा हूँ. Were you completing it? Yes, I was completed. Sorry. Completed. Sorry. Come again, please.
मैंने तुम बड़े अच्छे से बोलते हो यार। हाँ, बढ़िया। I was Sorry. sorry. बेटा हमसे। While completing it, Yes, I was completing it. क्या आप इसे पूरा कर रहे थे? हाँ, मैं इसे पूरा कर रहा हूँ। What is your name? My name is Shubham. Shubham, are you completing it? Yes, I was completing it. क्या आप इसको पूरा कर रहे हैं? हाँ, मैं इसको पूरा कर रहा हूँ. अच्छा, ठीक है, मैं सब कुछ। Were you completing it? yes, I was completing it. क्या आप इसे पूरा कर रहे थे? हाँ मैं इसे पूरा कर रहा हूँ. Were you completing it? Yes, I was completing it. क्या आप इसे पूरा कर रहे हैं? हाँ, मैं इसे पूरा कर रहा हूँ. Were you are complete? Were you completing it? Yes, I was completing it. क्या आप इसे पूरा कर रहे थे? हाँ मैं Were you completing it? Yes, बेटा, I was completing. क्या आप इसे पूरा कर रहे थे? हाँ बेटा, मैं इसको पूरा कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा घरेलू उपयोगी सेंटेंस बन जाए। Were you? What's your name, please? Ayush. Ayush, were you making मूली के पराठे? Yes, of course, I will make you believe. आयुष, क्या आप मूली के पराठे बना रहे थे? हाँ, मैं believe right now. Excuse me, Yes. are you prepared? Wait. Looking at the document. Excuse me, yes. Are you prepared meal? No, I was not prepared. क्या आप खाना बना रहे थे? नहीं, मैं खाना नहीं बना. Excuse me. Were you making meal? No, sorry. Were you making food? Yes, I was making. बहुत गंदा लगता है। बच्चों तुम बताओ, किस किस को गंदा लगा? हाँ, मुझे कितने दिनों से तुम लोगों में से किस किस ने फूड नाम का गंदा सा शब्द यूज नहीं किया है? नहीं किया है ना? अपन उसके लिए अगर कौन सा शब्द प्रयोग कर रहे हैं? उसने रखा तो कितना खूबसूरत शब्द है। स्पेलिंग NEAL, सेम टू सेम। मैं रिपीट करती हूँ, तुम तीन का दंड देखो। कुछ इंटरेक्टिव इडियम इसके लिखे होंगे, एक भी नहीं लिखा इतने दिनों से। तीन बैच में आ रहे हो, सर एक ही लिखा है. आप पहले ही सेव इज अ फाउंड. बस। हाँ, तो बाकी समय तुम क्या करते रहते हो? चलो, कुछ दूसरा क्वेश्चन करो। क्वेश्चन किसको करना है? were you making sandwich? यार, हमने गोभी मूली के पराठे बनवाए ना। मेक वर्ब तो यूज कर दी हमने। Were you listening music? Were you listening music? Yes, I was listening. क्या आप गाने सुन रहे थे? हाँ मैं गाना सुन रही हूँ. You are done.
चलो हम पूछ लेते हैं। When you play Sorry. sorry, when you play Sorry. लेकिन ये बहुत खतरनाक लग रहा है आज हमें बहुत दिनों बाद ऐसे लग रहा है। तुमने ध्यान दिया कि ये प्ले वर्क के अलावा इसका कोई वर्क यूज नहीं करती है। next time play नहीं करते sorry हाँ? ऐसा लगा क्या? तो पहले पेज में लगता वही लिखी हुई है। Were you arranging the chairs? Yes, I was arranging the chair. क्या आप कुर्सियां जमा रहे थे? हाँ, कुर्सियाँ जमा। Why you take tea? Sorry. Pizza. Were you taking fulkis? Yes, I was taking Mickey. क्या आप फुल्की खा रहे थे? Mom, were you completing? तो ये लिखे देव टीम का। चलो तब तक हम तुमसे पूछ लेते हैं। Were you combing your hair? Yes, I was combing my hair. क्या आप अपने बाल में कंघी कर रहे थे? हाँ, मैं अपने बाल कंघी कर रहा था। Were you going for party? Yes, I was going for. क्या तुम पार्टी के लिए जा रहे थे? जा रहे? सॉरी क्या तुम पार्टी में जा रहे थे? हाँ, मैं पार्टी में जा रहा था। Who is this? नहीं, और तुम्हारे बारे में तो इधर से कोई मम्मा ही से पूछ रहे हैं। Were you get this? सॉरी चलो तुम क्वेश्चन के लिए तैयार हो क्या? आंसर क्वेश्चन तुम क्वेश्चन आंसर करो। Were you taking shower? Sorry, come again. Yes, I was taking shower. क्या नहा रहे थे? हाँ मैं स्नान कर रहा हूँ। अब कुछ मत पूछो। Excuse me. Were you watching TV? Yes, I was watching TV. क्या आप टीवी देख रहे थे? हाँ मैं टीवी देख रहा था। Were you cheating in exam? No, I was. क्या Speak up better. No, I wasn't cheating in exam. क्या आप एग्जाम में नकल कर रहे थे? नहीं, मैं exam में। Were you doing your homework? yes I was doing homework आप आंसर करो। Come again. No, he will not come again. This facility is not available on your mobile. I was not completing my homework. Starting is wrong. Yes, I was completing in my. नहीं तो नेक्स्ट स्टेप पे लगा। चलो उन्हीं को देने दो। I was Sorry. Sorry. yes I wasn't completing my Sorry. Answer आप बोलिए। Yes, I was. जब अगर शुरू में क्या लगा हो तो हाँ या ना से कहीं से तो शुरू होगा उत्तर, या तो हाँ से शुरू होगा या ना से शुरू होगा। Doing my homework. क्या आपने अपना क्या आप अपना होमवर्क कर रहे थे? हाँ मैं अपना होमवर्क कर रहा था।
What you get tiring in playground? Sorry. Were you getting tired? Were you getting tired in playground? Yes, I was getting tired in ground. क्या आप प्लेग्राउंड में थका हुआ महसूस कर रहे थे, थक गए थे? मैं ग्राउंड में थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। It makes no difference. हमें given this is active sentence. Why you start your business? Sorry. Sorry. Start. So can you tell me which chapter is this sentence related? This sentence is related to How did you recognize? कैसे पहचाना? means What is the subject of this sentence? it is the subject of this sentence. What is the helping verb here? Here is no helping verb. ये जो पूछते हैं ये ऐसा नहीं है कि आदत हो गई है इसलिए पूछते हैं। इससे बच्चे को समझ में तो आना चाहिए कि वो कौन से चैप्टर को देख रहा है सब। उसको पता है कि देयर इज नो व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब? There is no helping verb. देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब। इसमें सहायक क्रिया है ही नहीं। व्हाट इज द मेन वर्ब हियर? Make is the main verb here. अच्छा, उसके अलावा और कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, मतलब बाकी सब जय श्री राम। मेक इज द मेन वर्ब हियर। व्हाट इज नो? No is the negative verb. नो इज द नेगेटिव वर्ब। व्हाट इज डिफरेंस? Difference is an object. Can you guess the meaning of this? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहलाते हैं इंफेक्टिव सेंटेंस, जिसमें सेंस अलग होता है, मीनिंग अलग होता है, वर्ड अलग होते हैं, मीनिंग अलग होता है, कई बार तो टेंस भी बदल जाता है, और कभी कभी तो ये इंफेक्टिव सेंटेंस आउट ऑफ ग्रामर भी होता है। ये हम विशेष तौर पर तुम्हारे लिए बता रहे हैं, इनको तो हम बता चुके। ये पूरा है ग्रामर में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मेक्स नो डिफरेंस। हम 2 राउंड खेलेंगे, एक आज एक कल। आज समय कम पड़ गया, स्पीक एज इट इज। It makes no difference. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। It makes no difference. It makes no difference. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। It makes no difference. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। It makes no difference. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। It makes no difference. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। It makes no difference. इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जल्दी से जल्दी किसी से भी सहायता लेके चीजें वेल मैनेज कर लो। इनफेक्टिव सेंटेंस इडियम एक जगह पे आने दो, चैप्टर भले तुम कहीं पे भी कुछ भी लिखते हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज टुडेस इडियम। ये आज का मुहावरा है। Which chapter is this sentence related? This sentence is related to simple past. Okay. What is the subject of this? Subject of this sentence चलो गनीमत इस बार इसने भी बोला
What is the helping verb? There is no helping verb. Thank you. There is no helping verb. अभी 3-4 दिन हमारी तबीयत खराब होने के कारण तुम लोग की भी तबीयत कुछ खराब हो गई थी। मतलब वो जो जोर की आवाज निकलती थी मिन टाइप में बदल गई। या तो कुछ लोग कम है ना? What is the second form of the verb? Second form of the verb is escape. This is second form. What is that? Narrow is an adjective. तुम लोगों ने अच्छा प्रयास किया, जवाब सही नहीं है तुम लोगों का, गलत है। ये सही एडवर्ब है। एडवर्ब जो वर्ब में जाके ऐड हो या जो वर्ब की विशेषता बतलाए एडवर्ब कहते हैं। तो ये शब्द बता रहा है कि वो किस तरह एस्केप। डू यू नो द मीनिंग ऑफ एस्केप? बचना। हाँ, what should be the verb for बच निकलना? The verb for बच निकलना is escape. What should be the second form of escape? The second form of escape is escape. And what should be the third form of escape? The third form of escape is escape. Can anybody guess the meaning of escape? Yes. Absolutely right. इससे रिलेटेड चीजें कुछ करना है अभी इसको बोलिए। फिर narrow escape हर बार बचा। Narrow escape वह 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 बार बचा। ये सेंटेंस भले थोड़ा कठिन है लेकिन दो चीजें तो इसमें परमानेंट है। एक सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल तो है ये। हाँ, एक नई चीज इसमें बीचों बीच आ रही है। ये परेशान अगर कर रही है किसी को तो बात समझ में आती है कि ये अचानक बीच में नई चीज क्या है। तो वो भी आपके बच्चे ने बता दिया कि इससे मिलती जुलती क्रिया है, इसकी अपोजिट। ये सुनी थी Rescue, yes. मतलब बचाना। what should be the verb for rest? What should be the verb for बचाना? The verb for बचाना should be rescue. रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं ना, बाढ़ वगैरह आती है तो सैनिक लोग आके लोगों को निकाल के ले जाते हैं।
What should be the second form of rescue? The second form of rescue should be rescue. And what should be the third form of rescue? The third form of rescue should be rescue. घड़ी सही सर्विसिंग यहाँ विराम Connect